Hello guys, welcome to my YouTube channel UPSC Notes. So in this video I am going to explain Indian Geography topic Introduction to Physiographic Divisions of India. So let's get started with the video. So first of all we will discuss the location of India. So India is located in the midway between Southeast Asia and Southwest Asia. That means Southwest Asia and Southeast Asia के mid में located है India. So it is surrounded by some water bodies, and water bodies located on three sides of India like southeast, southwest and in the south. So in the south it is Indian Ocean, and in the southeast it is Bay of Bengal, and in southwest is Arabian Sea. So I hope you all clear with the location of India. So now we are moving towards the physiography. So what is physiography? So physiography of an area is the outcome of structure, process and stage of development. So underline the keywords structure, process and stage of development. Then moving towards the 5 physiographic divisions. So 5 physiographic divisions are the Northern Mountain Wall, the plains of northern India, the peninsular plateau, the coastal plains and the islands. So in this video we are going to discuss these two topics, the northern mountains and the plains of northern India, in short and in easy language. So let's get started with the northern mountains. In the northern mountains, the first topic is the Himalayas. So Himalayas, as you know, the Himalaya is a part of the northern mountain. It is a parallel range of fold mountains. Then extent क्या है हिमालय का? Length है 2500 किलोमीटर from the Indus Gorge in Jammu and Kashmir west to Brahmaputra Gorge in Arunachal Pradesh east. That means east में अरुणाचल प्रदेश तक एंड वेस्ट में जम्मू कश्मीर तक की, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2500 किलोमीटर हो गया. देन नाउ ब्रेथ की बात करें तो 400 किलोमीटर वेस्ट में एंड 150 किलोमीटर इन द ओके. सो इन हिमालयाज देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और मिडिल हिमालयाज एंड द लास्ट शिवालिक, द आउटर हिमालयाज. So first of all we will discuss the Himadri, the greater Himalayas. Okay, so Himadri, known as Himadri, हिमाद्री को हिमाद्री क्यों बोलते हैं? Why? Because it remains covered with snow throughout the year. That means throughout the year it remains covered with snow. It is also known as Greater Himalayas and Inner Himalayas. ओके सो अब जानते हैं हिमाद्री का एक्सटेंट जो है वो वेस्ट में कहाँ तक है? वेस्ट में है नंगा पर्वत पीक 8126 मीटर एंड ईस्ट में है टिल नमचा बरवा पीक फॉर अबाउट 7756 मीटर. ओके सो नाउ मेजर पीक्स दैट कम अंडर हिमाद्री रेंज. सो द फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट for about 8848 meter. Then next is Mount K2 Godwin Austen, Mount Kanchenjunga that is about 8598 meter. Then Makalu Peak is for 8481 meter, Mansalu Peak 8156 meter and the Annapurna 8078 meter. These 3 peaks come under Nepal and this Mount Kanchenjunga comes in India. So now major passes. Major passes are Karakoram Pass, Kashmir, Shipkila, Baralapchala, Himachal Pradesh and Niti and Thagala in Uttarakhand. Okay, so now there are 2 glaciers that come under Himadri range. First is Gangotri and second is Yamunotri. The rivers that are originated from Himadri are Sharda, Ghagra, Gandak and Kosi. Okay, so now Himachal range. Himachal range is also known as middle or lesser Himalayas. Average height that varies from
1000 meter to 4500 meter. So the features of Himachal range are, range is highly dissected and uneven. Range जो है वो flat plan नहीं है, वो highly dissected और uneven platform है. Then mainly consist of metamorphized rocks. कौन सी rocks यहाँ पे सबसे ज़्यादा है? Metamorphic rocks. ईस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे वो कवर्ड रहता है डेंस फॉरेस्ट से. हिमाचल का ईस्टर्न पार्ट कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से. एंड जो नॉर्थ पार्ट है वो फेस करता है जेंटल स्लोप्स जो कि कवर है फ्रॉम डेंस वेजिटेशंस. इससे कवर है डेंस वेजिटेशन से. सो नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इन दिस रीजन. मे बी यू ऑल कैन नॉट एबल टू सी दिस, but this is written some of the important ranges in this region. Pir Pranjal, that belongs to Jammu and Kashmir, and Dhauladhar, Himachal Pradesh. Pir Pranjal रेंज जो है वो झेलम रिवर से लेकर 20 रिवर तक की है, अबाउट 300 किलोमीटर. एंड धौलाधर रेंज जो है वो फॉर्म करती है सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज. सो मेजर हिल स्टेशंस जो यहाँ पे हैं शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग. सो ड्यू टू दिस हिल स्टेशंस दिस इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑल्सो. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द शिवालिक रेंज. सो शिवालिक रेंज इज ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालयाज. It is formed by the deposition of sediments from Himadri and Himachal ranges. हिमाद्री एंड हिमाचल रेंजेस के जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं उसके डिपोजिशन से ये रेंज फॉर्म हुई है शिवालिक रेंज. सो यहाँ पे ब्रॉड वैलीज हैं जो लोकेटेड हैं बिटवीन हिमाचल, मतलब हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में जो ब्रॉड वैलीज लोकेटेड हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डून्स. क्या कहते हैं? डून्स. और देहरादून उसमें से एक सच वैली है. एवरेज हाइट क्या है शिवालिक रेंज की? एवरेज हाइट है बिटवीन 900 टू 1100. सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. सो नॉर्दर्न माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस है लाइक क्लाइमेटिक बैरियर. जो हिमालयाज है वो एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह एक्ट करता है जो हमें कोल्ड विंटर मॉनसून सीजन से सेव करता है. नाउ इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइडल पावर. जो रिवर्स और जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत इतने रैपिड स्पीड में मूव करते हैं दैट इट जनरेट्स हाइडल पावर. नाउ द रिवर्स जैसे गंडक, कोसी, घाघरा, गंगा, सो दीज रिवर्स फॉर्म अ फीडिंग ग्राउंड ऑफ पेरिनियल रिवर्स. देन इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर. देन टूरिस्ट पोटेंशियल, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं. देन फॉरेस्ट हैं. मिनरल्स, काफ़ी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया. देन फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. अब ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इनसे जो रिवर्स निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वो जो प्लेन्स हैं उनको काफ़ी फर्टाइल कर देती है. उनकी सॉइल काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, पोरस हो जाती है. सो नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. Okay, so the plains of northern India, it includes lowlands of 3 major rivers. यहाँ पे 3 major plains की बात हो रही है. The Indus, the Ganga and the Brahmaputra. So Indus river जो है उसका सोर्स क्या है? सोर्स है कैलाश रेंज. और ये जो रेंज है ये अबाउट 100 km नॉर्थ ऑफ मानसरोवर है. एंड ये रिवर जो है ये 5 ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है. कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड बीस. दीज ऑल आर रिवर्स, दीज ऑल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर. सो नाउ नेक्स्ट गंगा रिवर. गंगा रिवर rises in Gangotri Glacier in Himalayas. We have read that in Himadri there are 2 glaciers, Yamunotri and Gangotri. सो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इट एंटर द प्लेन्स एट हरिद्वार. प्लेन्स में कब एंटर होती है? हरिद्वार में, उत्तराखंड में. और मेन ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? यमुना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एंड महानंदा रिवर.
Then Brahmaputra River. Brahmaputra River rises in Tibet. In Assam, it joins various streams like Dihang, Dibang and Lohit. Tributaries are as follows: Tista. So the Indo-Gangetic Brahmaputra plain, also known as the Indus-Ganga plain, it is about 2.5 million km square. Fertile plain encompassing northern regions of the Indian subcontinent. मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो नर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया है. सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है उनको हम लोग इंडस गंगा प्लेन्स भी बोलते हैं. एंड इट इज़ फॉर अबाउट 2.5 मिलियन km स्क्वायर. कितना ज़्यादा एरिया है इसका? 2.5 मिलियन km स्क्वायर एरिया है. फर्टाइल प्लेन्स है और नर्दर्न रीजन्स जो है वहाँ पे बिलोंग करता है. मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? नर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है. ओके. So as you all can see in this diagram, this is the part of the northern plains. Here Rajasthan plains, Punjab Haryana plains and the Ganga plains. It also encompasses the eastern parts of Pakistan. Eastern parts of Pakistan भी है. Virtually all of Bangladesh, बांग्लादेश का part सारा, and southern plains of Nepal. Now the alluvial fertile plains. The alluvial fertile plains are formed by the deposition process of Himalayan rivers. Himalayan rivers से जितने भी sediments निकलते हैं उनका जितना भी deposition होता है उन सब से क्या form होते हैं? Alluvial fertile plains form होते हैं. So now what are the features of the Indo-Gangetic plains? So features of the Indo-Gangetic plain. First of all, see this diagram. In this diagram, here is the Tibetan plateau, then Greater Himalayas or Himadri, then उससे लोअर रेंज में हिमाचल, देन एकदम एट लास्ट लोअर रेंज में है शिवालिक्स. देन शिवालिक्स के जो साउथ में पड़ता है इंडो गंगेटिक प्लेन. देन हेयर आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स में. सो नाउ द फीचर्स ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है. स्ट्रेचेज अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस टू द माउथ ऑफ गंगा रिवर. मतलब इंडस रिवर से लेकर गंगा रिवर तक की कितना किलोमीटर हो जाता है डिस्टेंस? 3200 किलोमीटर. अब नदर्न बाउंड्री पे शिवालिक्स रेंज हो गया. देन वेस्टर्न बॉर्डर पे सुलाइमान एंड किरथर रेंज. ईस्टर्न बॉर्डर पे पूर्वांचल हिल्स पड़ जाते हैं. फिर ये क्या है कि जो वेस्ट में जाते जाते एकदम वाइड हो जाता है 500 किलोमीटर. मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे एलोवियम की कितनी है? 6100 मीटर. ये मैक्सिमम डेप्थ की बात करें. फिर एवरेज एलिवेशन कितना है? 200 मीटर अबव मीन सी लेवल. हाईएस्ट पीक फॉर अबाउट 291 मीटर इंडिकेट सी लेवल नियर अम्बाला. अब यहाँ पे क्या है? एलिवेशंस फॉर्म द ड्रेनेज. वो डिवाइड कर देते हैं वाटरशेड बिटवीन द इंडस सिस्टम एंड गंगा सिस्टम. गंगा सिस्टम और इंडियन सिस्टम का जो भी वाटरशेड है इट इज़ डिवाइडेड बाय द elevations at Ambala. So the geomorphological features of northern India plains are as follows, that it is subdivided on the basis of relief features in 5 parts: the Bhabar plains, the Terai tract, the Bhangar, the Khadar soil, Ray or Kolar. So as you can see in the diagram, this is the Himalayas, then Bhabar plains, then Terai tract, then Bhangar the old alluvial soil, Khadar new alluvial soil, and this is the river valley. Now moving towards the Bhabar plains. So Bhabar plains, narrow porous northernmost stretch of Indo-Gangetic plains. It is a narrow plain, porous northernmost stretch of Indo-Gangetic plains. 8 to 16 kilometer wide, running in an east-west direction along the foothills of Shivaliks. शिवालिक्स के फुटहिल्स पे लोकेटेड है. 8 से 16 किलोमीटर तक की वाइड है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की. देन कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडस टू द तिस्ता. एलुवियल फैंस मर्ज्ड बिल्ड अप भाबर बेल्ट. मतलब जितने भी एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स है वो मर्ज होके क्या बिल्डअप कर रहे हैं? भाबर बेल्ट. देन पोरोसिटी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मैनी पेबल्स एंड रॉक डेब्रिस. बहुत सारे पेबल्स और रॉक डेब्रिस के डिपोजिशन की वजह से यहाँ की पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है. फिर दिस एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ये एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है. यहाँ पे केवल बिग ट्रीज़
जिनकी रूट्स बहुत ही लार्ज होती हैं, केवल वही थ्राइव कर सकती हैं इन दिस भाबर बेल्ट. नाउ द तेराई ट्रैक्ट. The Terai is an ill-drained, damp, marshy and thickly forested narrow tract. So ill-drained, damp है, marshy बहुत ज़्यादा marsh land है, thickly forested मतलब यहाँ पे forest बहुत ही dense है और narrow tract है. फिर it is about 15 to 30 kilometer wide. Most of the Terai land is located in पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये मोस्टली टर्न हो गए इनटू एग्रीकल्चर लैंड. और यहाँ के जो कैश क्रॉप्स हैं वो कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं? शुगर केन हो गया, राइस हो गया एंड वीट हो गया. ओके, सो नाउ द भांगर सॉइल. इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल. द टेरेसेस आर ऑफन इम्प्रेग्नेटेड विद calcareous concretions known as कंकर. The barren plains in the deltaic region of Bengal. जो barren plains हैं वो located है in the deltaic region of Bengal. अब भुर formations, regional variations of bhangar in the middle of Ganga and Yamuna. मतलब भुर होता क्या है? भुर denotes an elevated piece of land. मतलब एक land जिसमें थोड़ा सा elevation है, elevated है, जो कहाँ पे situated है? Along the Ganga river banks and Yamuna do. सिचुएटेड कहाँ पे? गंगा रिवर बैंक्स, गंगा नदी के किनारे एंड यमुना डो. ओके, सो नाउ इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड्स. जितनी भी सैंड्स हैं जो विंड के थ्रू ब्लोन हो जाती हैं उनके एक्यूमुलेशन से ये भांगर सॉइल फॉर्म होती है. अब भांगर क्या क्या कंटेन करती है? भांगर कंटेन्स फॉसिल ऑफ एनिमल्स लाइक राइनोसेरस, लाइक हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स एंड एसेट्रा. So now Khadar soil. Khadar is a new alluvial soil. It makes the soils of Ganga most fertile. सबसे ज़्यादा fertile कौन सी soil बनाती है गंगा plains को? खादर soil. और ये new alluvium soil है. Now Ray और Kolar comprises saline efflorescences of drier areas in Haryana. इट्स स्प्रेड विद इंक्रीज इन इरीगेशन. मतलब ये रे और कोलार जो है ये इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू द इरीगेशन फैसिलिटीज़. सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.